Yes, students, as you can see, a few MCQs are there from the chapter periodicity. First one is consider the isoelectronic species sodium ion, magnesium ion, fluoride ion, and oxide ion. The correct order of increasing length of their radii means increasing order of atomic ionic radii में इनको arrange करना है अपने. Anyone who can tell the answer? First one is fluoride ion, oxide, then second oxide. As you can see the order, can you guess the correct answer? Isoelectronic species में atomic radii कैसे vary होता है? Anyone who can tell? But as you know that with the after losing electrons, cations become smaller in size because effective nuclear charge increase हो जाता है. And as you can see, atomic number oxygen 8, fluorine 9, sodium 11, magnesium 12. सबसे ज़्यादा atomic जो nuclear charge है, it is highest in magnesium. और उसमें 2 electron lose करने के बाद और ज़्यादा effective nuclear charge आ जाता है. तो magnesium ion will be smallest, followed by sodium ion. उसके बाद larger होगा fluoride ion and then oxide ion, because oxide ion has gained 2 electron. तो 2 electron gain करने के बाद उसके जो 8 protons है, तो effective nuclear charge is lowest for oxide. कि 8 electrons के लिए 8 protons के लिए 10 electrons को hold करना difficult है. Okay, तो answer correct option here will be second. Sorry. Next question number 2. Which of the following is not an actinoid? And in this question, as you know that actinoid series जो है बेटा inner transition elements 2 series are there. एक lanthanoid है, एक actinoid है. Lanthanoid series terbium. हाँ जी बेटा, टर्बियम 65 terbium. दे रही थी कि जो आपको लेंथेनॉइड्स हैं वो 57 के बाद 58 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होते हैं और 71 तक हैं, और जो एक्टिनॉइड्स हैं वो 89 एक्टिनियम के बाद 90 से स्टार्ट होते हैं एंड 103 पे एंड होते हैं. तो 90 से 103 के बीच में ये तीनों एटॉमिक नंबर 96, 98 एंड 92, ऑल दीज थ्री आर actinoids, but terbium 65 is not an actinoid element. Rather, it is a lanthanoid. Question number 3. Order of screening effect of electrons of s, p, d and f orbitals of a given shell of an atom on its outer shell electron. Screening effect या shielding effect जिसको हम कहते हैं, अगर हम अलग अलग ऑर्बिटल्स की बात करें तो हाईएस्ट किसके लिए होता है बेटा? यू रिमेंबर दैट? First option. First option is correct. Good. S, P, D, F. S has highest shielding effect and F electrons, हम जिसको कहते हैं poorer shielding effect is shown by F electrons, because जितना symmetrical arrangement electronic cloud का कम होता जाएगा, S orbitals are most symmetrical. Nucleus के around पूरी तरह से spherical shape में है. That is why they have maximum screening effect. So first option is correct. First ionization enthalpy of sodium, magnesium, aluminium and silicon are in the order. 2 options यहाँ हैं. Next 2 options आपको एक second. Yes, here you can see. Question is first ionization enthalpy. First ionization enthalpy sodium 11 atomic number, फिर 12, 13 and 14. एक पीरियड के ही एलिमेंट्स हैं ये, थर्ड पीरियड के. तो थर्ड पीरियड एलिमेंट में इनका जो वेरिएशन है आयनाइजेशन एंथैल्पी का फर्स्ट वाली का, व्हाट इट वुड बी? एनी गेस? बेटा एटॉमिक साइज के साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी, अदरवाइज जो एक जनरल ट्रेंड है पीरियड में साइज छोटे होते जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है. तो अगर आप सोचो कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा तो यहाँ थोड़ा सा आपको एक चीज माइंड में रखनी है, जहां सेकंड पीरियड के बाद ग्रुप 13 आता है, हमने वहां ग्रुप पी ब्लॉक में जो फर्स्ट 13 ग्रुप एलिमेंट्स के लिए भी एक्सेप्शन याद रखना है अपने, कि उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज स्लाइटली
लोअर होंगी सेकेंड ग्रुप एलिमेंट से। तो यहाँ जो ऑप्शन फर्स्ट है, सोडियम has lowest ionization enthalpy followed by magnesium, फिर मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की थोड़ी कम है, उसके बाद सिलिकॉन में फिर इंक्रीज है। तो ये जो एक्सेप्शन आया मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में, इसका रीजन ये है मैग्नीशियम हैज टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल। ठीक है, s ऑर्बिटल या s सबशेल जो है कंप्लीटली फिल हो जाती है 2s 3s2, और एल्यूमिनियम में 3p में एक इलेक्ट्रॉन है, तो s ऑर्बिटल्स आर मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, तो उनका रिमूवल डिफिकल्ट है। वेयर एज एल्यूमिनियम के पास जो एक ही 3p1 इलेक्ट्रॉन है, इट कैन बी रिमूव्ड इजीली, क्योंकि हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो दैट विल बी लोअर फॉर एल्यूमिनियम एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। ये सारे ही ग्रुप 13 एलिमेंट्स के लिए सेम ट्रेंड है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। सोडियम लोएस्ट, फिर मैग्नीशियम, देन मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम का कम है, देन सिलिकॉन की सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम। वैसे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जनरली इतनी हायर की नहीं आपको देंगे, बट स्टिल ये क्वेश्चन है बुक में एग्जाम्पलर में, तो यू कैन डू दिस। गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64, इस पे बेटा 4f7 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इससे पहले वाले एलिमेंट पे हो जाता है 63 पे। ठीक है, बट 4f7 को डिस्टर्ब ना करते हुए जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो 5d1 में एंटर होता है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। Xenon 4f7 5d1 6s2, third option is the correct one here. The statement that is not correct for periodic classification of elements is, read these options and let me know. Quite easy. First option, the properties of elements are periodic function of their atomic numbers. Non-metallic elements are less in number than metallic elements. For transition elements, 3d orbitals are filled with electrons after 3p orbitals and before 4s orbitals. And the first ionization enthalpies of elements generally increase with increase in atomic number as we go along a period. Which one will be not correct? Yes, any idea beta? Properties of elements are periodic function of their atomic number. This is correct. ये तो अपना modern periodic law ही है ना. Non-metallic elements are less in number than metallic. This is also correct because metals, आप देखो S block, D block, F block सारे metallic elements हैं, और P block में भी कुछ metals हैं, तो non-metallic elements are very less in number. Third option, for transition elements, 3d orbitals are filled with electrons after 3p orbitals and before 4s. This is wrong. 4s orbital की filling होने के बाद 3d में filling start होती है, तो this is not correct. Fourth option is also correct. General trend जो ionization enthalpy का है वो increase होती है, तो third option is the correct answer here. Next, among halogens, correct order of amount of energy released in electron gain is electron gain enthalpy का correct order halogens में. Yes, it's quite easy. Who will tell? Sorry. Question number 7th, correct order of amount of energy released in electron gain, जिसको हम electron gain enthalpy कहते हैं. What will be the correct order for halogens? Anyone who can tell? But I always remember second period elements, oxygen, nitrogen, fluorine. Nitrogen, oxygen और fluorine में आपको ज़्यादा मिलेगा exception that both of these small sized elements have इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, तो उनके लिए अदरवाइज छोटे एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू हायर होती है, और आपको लगेगा कि शायद फर्स्ट और जो ऑप्शन है दैट वुड बी करेक्ट, बट एक्चुअली द ऑर्डर करेक्ट हियर इज
थर्ड वन, जहां फ्लोरीन की थोड़ी सी कम हो जाती है क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस दैट आर हायर इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, बिकॉज 2p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो थोड़ा सा अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर, मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है, तो फ्लोरीन उतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं करता इलेक्ट्रॉन को जितना क्लोरीन करता है. तो क्लोरीन हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी among halogens. ये हमने रीजनिंग क्वेश्चन भी किया है इसमें कि why chlorine has highest negative electron gain enthalpy. रीजन 3p ऑर्बिटल्स में इतना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होगा जितना फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल्स में स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. जस्ट आप इतना ही वर्ड अगर लिख देते हो, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इन फ्लोरीन it does not have highest negative electron gain enthalpy among halogens. Your answer will be correct. तो ये रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए. फ्लोरीन का होना चाहिए था मैक्सिमम, बट ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फ्लोरीन सेकंड नंबर पे है, उसके बाद क्लोरीन सबसे हाईएस्ट क्लोरीन है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड आयोडीन. Question number 8. Periodic, the period number in the long form of periodic table is equal to. First one, magnetic quantum number of any element of the period. Second, atomic number of any element of the period. Third, maximum principal quantum number of any element of the period. And maximum azimuthal quantum number of any element in the period. Yes, period number किसके equal होता है? Maximum principal quantum number of any element of the period. Very good. Third option is the correct. जो n वैल्यू है, हाईएस्ट n वैल्यू जो चल रही है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हो किसी भी एलिमेंट की, तो दैट विल बी इक्वल टू पीरियड नंबर. एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड. जो एलिमेंट्स जिनमें 4f इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, क्या कहते हैं हम उन एलिमेंट्स को? एक्टिनॉइड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लेंथेनॉइड्स और हेलोजेंस. लेंथेनॉइड्स. 5f के लिए एक्टिनॉइड्स, 4f लेंथेनॉइड्स, d ऑर्बिटल्स अगर फिल हो रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड हेलोजेंस आर p ब्लॉक एलिमेंट्स. तो इनमें p ऑर्बिटल्स फिल होते हैं. अब लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स को कलेक्टिवली इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं. तो सपोज इफ इट इज आस्क्ड द एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन f ऑर्बिटल्स, देन दे विल बी कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. Question number 10. Which of the following is correct order of size of the given species? Sorry. Correct order of size. अब size के लिए एक trend याद रखो, cations have smallest size, फिर जो न्यूट्रल होगा वो बीच में आ जाएगा और नेगेटिव आयन का लार्जेस्ट साइज होता है. तो ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट. आयोडाइड आयन विल हैव लार्जेस्ट साइज फॉलोड बाय आयोडीन एटम एंड देन फॉलोड बाय आयोडीन कैटायन. ठीक है. विद इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन कैटायंस साइज जो है वो छोटा हो जाता है. गो. The formation of oxide ion from oxygen atom requires first an exothermic and then an endothermic step. ऑक्सीजन से ऑक्साइड आयन का बनना, पहले एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो एनर्जी आप देख रहे हो -141 किलो जूल इज रिलीज्ड. बट व्हाइल एक्सेप्टिंग सेकंड इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्साइड आयन का जो फॉर्मेशन है इट एक्चुअली टेक्स प्लेस विद एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. तो दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 negative in gas phase is unfavorable even though O2 negative is isoelectronic with neon. It is due to the fact that second electron gain enthalpy value जो है ऑक्सीजन की, it is positive. Reason, ये भी हमने रीजनिंग क्वेश्चंस में डिस्कस किया हुआ है. Why is second electron gain enthalpy of oxygen is positive? Electron repulsion overweighs the stability gained by achieving noble gas configuration. Yes, this is correct answer. क्योंकि बेटा जब हम ऑलरेडी एक एनायन बना चुके हैं और वो एनायन एक इलेक्ट्रॉन को जब
मतलब इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अपकमिंग इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है तो उस केस में दोनों नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेज द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो इसलिए गैसियस फेज में इजीली नहीं बनता, बट इन यू कैन से जब हम बात करते हैं एक्वस मीडियम की, इट फॉर्म्स इजीली ड्यू टू वो वहां पर आप सोचोगे फैक्टर जो आ जाता है हाइड्रेशन एंथैल्पी, दैट ओवरवेज दिस effect of electron gain enthalpy. Next, here is a paragraph given, and from this paragraph you need to solve the questions. तो इसमें बेटा एक्चुअली सारे टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स में हर एक चैप्टर के लिए होते हैं, तो इफ यू कैन गो थ्रू, ऑनलाइन अवेलेबल है हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जाम्पलर्स विद सॉल्यूशंस आल्सो। ये तो मैंने एनसीईआरटी बुक ही पीडीएफ निकाली हुई एग्जाम्पलर, बट अदरवाइज आपको अलग अलग उसमें ऑप्शंस मिल जाएंगी। सॉल्यूशंस आर आल्सो गिवन विद द क्वेश्चंस। Comprehensions given below is followed by some multiple choice questions. Each question has one correct option. Choose the correct one. In modern periodic table, elements are arranged in order of increasing atomic numbers, which is related to electronic configuration. Depending upon the type of orbitals receiving the last electron, the elements in periodic table has been divided into 4 blocks: S, P, D, and F. The modern periodic table consists of 7 periods and 18 groups. Each period begins with the filling of a new energy shell in accordance with Aufbau's principle. 7 periods have 2, 8, 8, 18, 18, 32, and 32 elements respectively. The 7th period is still incomplete, but अब nowadays it is complete. अब सारे उसमें elements जो हैं वो discover हो चुके हैं. To avoid the periodic table being too long, the 2 series of F block elements called lanthanoids and actinoids are placed at the bottom of the main body of periodic table. Now the questions are: the element with atomic number 57. 57 जो element है बेटा, anyone who can tell? It is D block. D block. D block. लैंथेनम है ये, लैंथेनम La। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 5d ऑर्बिटल में एंटर होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज एलिमेंट ऑफ D ब्लॉक। उसके बाद 58 से F ब्लॉक स्टार्ट होता है। लास्ट एलिमेंट ऑफ द P ब्लॉक इन 6th पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। 6th पीरियड का लास्ट एलिमेंट। अब ये चीज याद रखो, अगर P ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहे हैं तो जो पीरियड नंबर है बेटा वही वाली P सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। तो यहाँ पर 7p6 पॉसिबल नहीं है, वो 7th पीरियड के होंगे। यहाँ पे भी 7p लिखा हुआ और वो भी 0 लिखा तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। इन दोनों में से आपको सेलेक्ट करना है, और इन दोनों में से आप देखो वो लास्ट एलिमेंट पूछ रहे हैं। लास्ट एलिमेंट इज फॉर नोबल गैस, तो नोबल गैस में P सबशेल कंप्लीटली फिल होती है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 4f14, 5d10, 6s2 and 6p6। तो p ऑर्बिटल्स में फिलिंग पीरियड नंबर के अकॉर्डिंग चलती है। D ब्लॉक एलिमेंट्स में फिलिंग जो D वाली होगी वो n-1 के अंदर आएगी, मतलब जो पीरियड नंबर है उससे एक लेस, जैसे ये 5d है यहाँ पे 6 पीरियड के लिए, और F के अंदर n-2 में फिलिंग चलती है। तो ये थोड़े से हिंट्स आप ध्यान रखोगे तो फिर ऐसे अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो आंसर्स। Which of the elements whose atomic numbers are given below cannot be accommodated in the present setup of long form of periodic table? अभी जो हमारी modern periodic table books में है उसमें इनमें से कौन सा एलिमेंट आप accommodate नहीं कर सकते? 107, 118, next है 126 and 102. Which element you cannot accommodate? अभी तक जितनी हमारे पास periodic table है 126. 126 बिकॉज अभी तक जो एलिमेंट्स है 118 है, उसके आगे 119 के लिए हमें 8th पीरियड स्टार्ट करना पड़ेगा उस पीरियोडिक टेबल में। वो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है क्योंकि एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए फर्दर। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट अबव द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 43। 43 से जस्ट अबव। थोड़ा सा आइडिया रखो बेटा, इसमें भी आप 36 जो है उसमें आपका 4th पीरियड कंप्लीट होता है, तो 43 जो है वो आपका 5th पीरियड का एलिमेंट है। 5th पीरियड के एलिमेंट में से अगर आपको उसके जस्ट अबव वाला एलिमेंट निकालना है तो 18 आप माइनस कर दो। 43 में से 18 माइनस करोगे
अप्रोक्सीमेटली आएगा ये 25। तो 25 मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है और मैंगनीज 3d5 4s2। आप लिख के देख सकते हो 25 एटॉमिक नंबर के लिए 3d5 आता है, मतलब 4s2 तक 20 एटॉमिक नंबर कंप्लीट होते हैं कैल्शियम तक, ठीक है। उसके बाद 25 एटॉमिक नंबर के लिए 3d5 ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो फर्स्ट इज ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। बाकी ये 4p वाला ऑप्शन नहीं है, इसमें क्या 3d6 7 भी नहीं है, 3d6 तो 26 के लिए आता है। Next is the elements with atomic number 35, 53 and 85 are all. Yes, anyone who can guess? Quite easy it is. Halogens, ma'am. Yes, halogens, because 35 क्लोरीन है, 53 आयोडीन है, 85 एस्टेटीन है। एस्टेटीन वैसे मतलब इतनी ज्यादा उसकी प्रॉपर्टीज नोन नहीं है, बट स्टिल इट इज द मेंबर ऑफ 17th ग्रुप, तो हमें उसको हेलोजेंस में ही रखना है। अदरवाइज हम प्रॉपर्टीज जब पढ़ते हैं तो आयोडीन तक ही पढ़ते हैं उसमें। करेक्ट ऑप्शन इज हेलोजन सेकेंड। Electronic configuration of 4 elements A, B, C and D are given below. Which of the following is the correct order of increasing tendency to gain electron? यहाँ आपको options इनकी configurations लिखी हुई हैं, अब उनको देख करके आपने guess करना है कि electron gain enthalpy या electron gaining tendency किसकी ज्यादा होगी। Yes, have a look and guess. Ma'am, third option. And first option. B, C, A, just a minute. D में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, yes correct. B है आपका 4, हाँ इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं। C is 3s1, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन की नहीं होगी। एंड A 3s1, चलो ठीक है। A नोबल गैस है, कंप्लीटली फिल्ड है, यहाँ आप फिर थोड़ा सा कर सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन S में अगर आता है तो S will completely filled। ओके बेटा, it will be D, B, C, A. Third option will be the correct. अब यहाँ जो क्वेश्चंस हैं इनमें 2 और more ऐसे क्वेश्चंस हम स्कूल में तो नहीं डालते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैविंग मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो इफ you can find out which of the following elements can show covalency greater than 4। 4 से ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड इसमें से कौन सा एलिमेंट्स बना सकता है? बेरिलियम कैन नॉट फॉर्म, फॉस्फोरस कैन, सल्फर। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स जो हैं वो नहीं बना सकते बिकॉज उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं है। तो हियर 2 आंसर्स विल बी करेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फॉस्फोरस एंड सल्फर बीइंग मेंबर्स ऑफ थर्ड पीरियड, सॉरी फोर्थ पीरियड के मेंबर्स हैं, तो they can extend their covalency. Those elements impart color to the flame on heating in it, the atoms of which require low energy for ionization. Means जिन elements के लिए ionization enthalpy कम होती है, वो अपने हमने पढ़ा है S block elements में कि वो एक characteristic color देते हैं flame को, and the elements of which of the following groups will impart color to the flame. तो मैं ग्रुप नंबर बताना है आपको, किस ग्रुप के एलिमेंट्स कलर देते हैं। सेकेंड 13 एंड नेक्स्ट है 1 एंड 17। ग्रुप 2 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ये 2 ग्रुप एलिमेंट्स है, दोनों ही एस ब्लॉक हो गए। तो 2 आंसर्स करेक्ट हियर आर सेकेंड एंड फर्स्ट, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन कह रही हूँ, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 1 एलिमेंट्स। Which of the following sequences contain atomic numbers of only representative elements? बेटा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है वो S एंड P ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, तो इनमें से वो एटॉमिक नंबर्स आपको निकालने हैं जो S और P ब्लॉक के हैं। यहाँ फर्स्ट देखो, थर्ड एलिमेंट थर्ड S ब्लॉक में 33, क्लोरीन 35 है, उससे पहले ही आ रहा है ये, जस्ट 33 15th ग्रुप का एलिमेंट आएगा। तो इट विल बी P ब्लॉक। 53 आयोडीन है, 87 86 पे रेडॉन आता है, तो ये 87 आपका S ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये फर्स्ट वन इज करेक्ट है एक तो।
सेकंड ऑप्शन में 2 हीलियम आ गया, 10 नियॉन आ गया, 22 इज कैल्शियम के बाद 22 ये डी ब्लॉक आ गया, 36 पे ये तो पी ब्लॉक है, बट स्टिल एक एलिमेंट यहाँ पर आपको डी ब्लॉक का मिल रहा है, ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं है। देन 7 फ्लोरीन, 17 भी आप हेलोजेंस में ही है क्लोरीन, देन 25 ये डी ब्लॉक है, तो ये ऑप्शन भी छोड़ दो। नेक्स्ट 9 एटॉमिक नंबर पी ब्लॉक, 35 हेलोजन, 51 भी इसी में आएगा, 13th ग्रुप का मेंबर है, और 88 आपका 86 के बाद ये एस ब्लॉक है, तो ये चारों जो है आपके। अदरवाइज आप ये वैसे एक सेम ग्रुप के नहीं है, इसलिए मैजिक नंबर से ट्राई तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट एटॉमिक नंबर का आइडिया लेके आपको गेस करना है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। जहां पे भी डी या एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट आ गया, 21 से 30 आपको याद रखो फर्स्ट डी सीरीज है, तो वो वाले कहीं भी कंसिडर नहीं होंगे रिप्रेजेंटेटिव में, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखो। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप एस एंड पी, बिकॉज उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो आउटर मोस्ट शेल, जिसको हम एन कहते हैं, हाईएस्ट क्वांटम नंबर वाले और सब शेल्स में ही चल रही है। Which of the following elements will gain one electron more readily in comparison to other elements of their group? Chlorine. Chlorine. Oh, good. क्योंकि बाकी फर्स्ट देखो ये 16th ग्रुप का है, तो 16th ग्रुप में और 17th ग्रुप में कंपैरिजन करें हम, तो 17 की इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी हायर है, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों 16 ग्रुप के, अगर ऑक्सीजन और सल्फर में कंपैरिजन करना है तो सल्फर की हायर है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, सोडियम की इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी लोएस्ट होगी यहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? एक मिनट, सॉरी, इन्होंने ऑप्शन ये ऊपर 1 से ज्यादा वाले हैं ना, तो अगर आपको देना है कि मोर रेडिली कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स ऑफ देयर ग्रुप, तो यहाँ पे दो ऑप्शन जो लेनी है आपने, क्लोरीन एंड सल्फर उठानी है, क्योंकि सल्फर की ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी, ठीक है, तो दो ऑप्शन, एक फर्स्ट आ जाएगा, एक फोर्थ आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? हीलियम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल. Chlorine has less negative electron gain enthalpy than fluorine. Less negative, ये तो wrong आ गया. Mercury and bromine are liquids at room temperature, ये correct है. In any period, atomic radius of alkali metal is the highest. ये भी correct है, तो third and fourth है correct options यहाँ पे. Otherwise, helium की भी highest first ionization enthalpy है. इसमें ऐसे अगर हम देखें एक पीरियड में, तो एटॉमिक रेडियस, अदरवाइज हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो एल्कली मेटल की हाईएस्ट मानते हैं, बट फॉर अदरवाइज नोबल गैस एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस, तो यहाँ मुझे कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में, मे बी फर्स्ट एंड दो से ज्यादा ऑप्शंस भी हो सकती हैं, जस्ट एक मिनट चेक करना द सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ जी बेटा, इसकी 3 ऑप्शंस करेक्ट है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा डाउट था मुझे फोर्थ ऑप्शन में। अगर हम नोबल गैस को कंसीडर नहीं करते तो जनरल ट्रेंड एटॉमिक रेडिया ही मतलब एल्कली मेटल की ही हाईएस्ट होती है, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस आर करेक्ट, 3 ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज which of the following sets contain only isoelectronic ions? आइसोइलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होने चाहिए उसमें, तो वो आपने इसमें से करेक्ट सेट उठाने हैं। फर्स्ट वाले में जिंक 2 पॉजिटिव जो आ रहा है बेटा, जिंक के 30 एटॉमिक नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने के बाद 28 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद 18 है, तो ये इतना डिफरेंस आ गया, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसको बाकी की कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखो आप, पोटेशियम 19 है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया 18, कैल्शियम 20 में से 2 गए 18, स्कैंडियम 21 में से 3 गए अगेन 18, क्लोराइड आयन 17 + 1 18, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। देन फॉस्फाइड आयन P3 नेगेटिव, फॉस्फोरस 15 + 3 18, सल्फर 16 + 2 18, क्लोराइड में 1 गेन हुआ 18, पोटेशियम ने 1 लूज किया, इसके भी 18, तो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शंस आर करेक्ट। बाकी ऑप्शन में अब टाइटेनियम, आर्गन के साथ इनका टाइटेनियम तो इज ओके,
क्रोमियम 3 पॉजिटिव नहीं आएगा क्योंकि क्रोमियम 24 पे है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसमें 21 अभी भी पड़े हैं, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. ओनली सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर. In which of the following options order of arrangement does not agree with the variation of property indicated against it? Order of arrangement does not agree with the variation of property. Aluminium, magnesium, sodium ion fluoride and increasing ionic size. Ionic size इससे कम हो रहा है, सबसे छोटा ये तो ठीक है. Does not agree वाला बोल रहा है. बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. बोरॉन के बाद ये तो सारा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में से ये चेक मतलब करेक्ट नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हायर है ऑक्सीजन से. यही ऑप्शन होगा एक तो इनकरेक्ट, सेकेंड वन. उसके बाद है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी रॉन्ग है क्योंकि क्लोरीन की हाईएस्ट है ग्रुप में. इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस ये करेक्ट है. तो सेकंड एंड थर्ड बेटा 2 ऑप्शंस आर हियर व्हिच डू नॉट एग्री विद वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. ओके, क्योंकि कार्बन, बोरॉन से कार्बन में तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज है, नाइट्रोजन में भी इंक्रीज है, बट आगे फर्दर ऑक्सीजन पे ये एक्सेप्शन है क्योंकि ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, सो दे विल हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो ये ट्रेंड रॉन्ग हो गया यहाँ पे. और क्लोरीन का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फ्लोरीन के कंपैरेटिवली ज्यादा होती. तो ये लास्ट वाले जो दोनों एरोज हैं यहाँ पे ये उल्टे होने चाहिए थे. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो यूनिट? जिनमें से किसकी यूनिट नहीं होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड मेटालिक कैरेक्टर. मेटालिक कैरेक्टर. मेटालिक कैरेक्टर और उसके अलावा एक और भी है चीज, 2 ऑप्शंस हैं, मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकती है, बट ये दोनों की तो यूनिट है, आपको पता है, ये वैल्यूज हैं एनर्जी की. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब भी हमने पढ़ा है हीट चेंजेस. तो हीट चेंजेस जहाँ होंगे वहां तो यूनिट रहेगी ना, किलो जूल में हम कर सकते हैं उनको, ये कैलोरीज में भी कर सकते हैं. तो यहाँ जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये एक तरह का रिलेटिव टेंडेंसी है क्योंकि इसको मेजर किया गया है रिलेशन में एक दूसरे एलिमेंट्स के साथ. तो दिस इज अ काइंड ऑफ property which doesn't have any unit. तो electronegativity and metallic character ये दोनों properties ऐसी हैं जिनकी कोई unit नहीं है. Next, ionic radii vary in inverse proportion to the effective nuclear charge, inverse proportion to the square of effective nuclear charge, direct proportion to the screening effect and direct proportion to the square of screening effect. Ionic radii, direct proportion to the screening effect higher होगा. Obviously it will be and direct proportion to square and direct inverse proportion to the effective nuclear charge. ये फर्स्ट वाला तो inverse proportion to effective nuclear charge है, and next थर्ड वाला है direct proportion to the screening effect. First and third I think they will be correct. हाँ जी, स्क्वायर के नहीं करना, स्क्वायर से एक्चुअली एटॉमिक नंबर का डायरेक्ट रिलेशन है, इससे नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज के साथ स्क्वायर में नहीं है. तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शंस विल बी करेक्ट. ओके, फॉर 22 स्क्वायर पे नहीं करना आपने कोई भी, क्योंकि जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना साइज छोटा होगा तो इनवर्स रिलेटेड, और स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही आयनिक रेडियाई जो है वो ज्यादा होगा, बिकॉज न्यूक्लियस का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूक्लियर के इफेक्ट को पहुंचने नहीं देगा वहां तक. ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट रिलेशन, वहां इनवर्स रिलेशन. An element belongs to third period and group 13 of periodic table. Which of the following properties will be shown by the elements? थर्ड पीरियड का है और ग्रुप 13 का है. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिक्विड एंड मेटालिक, सॉलिड मेटालिक, सॉलिड नॉन मेटालिक. ग्रुप 13 में थर्ड पीरियड सॉलिड एंड मेटालिक. सॉलिड एंड मेटालिक. हाँ बेटा, थर्ड पीरियड में ग्रुप 13 का जो मेंबर है कौन सा है वो? एल्यूमिनियम. हाँ ठीक है. नहीं ग्रुप 13 ठीक है, एल्यूमिनियम में. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी सही है, तो ये एक ऑप्शन ये भी ले लो. 2 ऑप्शन लेने ना हमने, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है एल्यूमिनियम,
और सॉलिड एंड मेटालिक भी है. क्लियर? तो फर्स्ट एंड थर्ड 2 ऑप्शंस विल बी देयर. शॉर्ट आंसर्स की जगह ना मैं अभी आपको थोड़ा ही टाइम रह गया, असर्शन रीजन वाले हम पहले कर लेते हैं. इस तरह के तो आप लोग करते ही रहते हो क्वेश्चंस. मैचिंग की जरूरत नहीं है, मैचिंग के हम नहीं डालते क्वेश्चंस एग्जाम. ये वाले assertion and reason type. First assertion A, generally ionization enthalpy increases from left to right in a period. When reason दिया हुआ है, when successive electrons are added to the orbitals in the same principal quantum level, the shielding effect of inner core of electrons does not increase very much to compensate for the increased attraction of the electrons to the nucleus. मतलब जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स सेम सबशेल में फिल हो रहे हैं, तो सेम सबशेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब शेल नई कोई इंक्रीज तो हुई नहीं है, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट जो है वो उतना इंक्रीज नहीं होता जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. तो इसलिए न्यूक्लियर चार्ज वाला जो फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो ओवर मतलब उसको काउंटर जो है बैलेंस नहीं कर पाते, ये वो ओवरवे कर जाता है न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर. तो दिस रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. यहाँ पर क्या है, assertion is correct and reason is wrong. This is not correct. Assertion and reason are correct and reason is the correct. तो B part is. बेटा ये कुछ ना ध्यान रखो, हर बार आपको यही जरूरी नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन में ही करेक्ट स्टेटमेंट. कई बच्चे ये ऑप्शंस पढ़ते नहीं है, सीधा ही आंसर लिख देते हैं कि फर्स्ट ही होगा. अब देखो यहाँ जो इन्होंने दिया है इसमें सेकेंड ऑप्शन में करेक्ट डाला है, फर्स्ट में रॉन्ग था. तो ये चीजें भी थोड़ा सा ध्यान रखना. कोई भी ऑप्शन हो सकती है, आपको ऑप्शंस अच्छे से पढ़नी है. तो हियर दिस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, दैट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. नेक्स्ट, बोरॉन हैज अ स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम. बेरिलियम 2s2 से इलेक्ट्रॉन हटाना, बोरॉन में 2p से. तो पेनिट्रेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज मोर देन 2p इलेक्ट्रॉन, हेंस 2p इलेक्ट्रॉन इज मोर शील्डेड बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन 2s. यस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? पहले ऑप्शंस पढ़ लो, फिर मुझे आंसर बताना कौन सा करेक्ट है. Here also the reason is correct because boron की smaller first ionization enthalpy है than beryllium. बेरिलियम ने इलेक्ट्रॉन 2s से रिमूव करना, बोरॉन ने 2p से. तो रीजन भी सही दिया हुआ है, 2s इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स